নমস্কার, সময় বাংলা সংবাদে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি প্রীতি। দেখে নেব আজকের বিশেষ সংবাদ। বেলদা জনসভা থেকে তৃণমূলকে তো একাধিক প্রতিশ্রুতি মোদির। রাজ্যে প্রথম দফা নির্বাচনের আগে শেষ রবিবারের প্রাক্কালে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, তার আগেই শনিবার বাংলার ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা মাঠে জনসভা থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। বক্তব্যে একাধিক প্রতিশ্রুতি ও অভিযোগ তুলে ধরে মোদী জানান, বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের জন্য নিয়মিত ভাতা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি হাজার হাজার যুবকের সঙ্গে হওয়া প্রতারণার হিসেব নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারাই সরকারের হাত পা, চোখ কান। এতদিন আপনাদের ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে, সেই ভয় দূর করা হবে। সুযোগ পেলে রাজ্যের কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশনের আওতায় আনার আশ্বাসও দেন তিনি। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদী বলেন, গ্রামে 125 দিনের কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করা হবে এবং সিন্ডিকেট রাজ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, তারা শুধু ভোট ব্যাংক রাজনীতিতে ব্যস্ত এবং অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। কর্মী সমাজ সহ একাধিক সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করার অভিযোগও তোলেন তিনি। মহিলাদের উন্নয়ন প্রসঙ্গেও একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করা হবে এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে মহিলা বিরোধী মনোভাবের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হলে নারী, যুবক, কৃষক ও সরকারি কর্মচারী সব শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গ্যারান্টি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শেখ ওয়ারেস আলী রিপোর্ট, সময় বাংলা সংবাদ। আমাদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীজিকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত করুন। জোরে হাততালি। मोदी 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 जी स्वागतम। मोदी जी के আমাদের মধ্যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট এবং সহকারী ভারতী পশ্চিম মেদিনীপুর এখন আমাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, যে মুহূর্তের যার বক্তব্য শোনার জন্য সকাল থেকে আমরা অপেক্ষা করে আছি, দেশের আন বান শান ভারতীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मैं सभी कैंडिडेट से प्रार्थना करता हूं कि सारे कैंडिडेट जरा आगे आ जाएं। सारे जो चुनाव के उम्मीदवार हैं वो आगे आ जाएं। मैं उन सबको नमस्ते करके आपके पास आता हूं, उसके बाद भाषण शुरू कर। রাধা মাধব, দুর্গা পাশে কেমন আছেন? মেদিনীপুরের সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার প্রণাম। यहाँ के सभी क्रांतिवीरों और सेनानियों को मैं नमन करता हूं। आप सभी बीजेपी को, मेरे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहां आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे अभी बताया गया 3-3, 4-4 घंटे से आप बैठे हैं। मैं आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं तृणमूल की निर्ममता को 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया।
कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर रुपयों के ढेर पर बैठे हैं और आलू किसान जिंदगी जीने के लिए जूझ रहा है। ये बालू का खेल और ये आलू की बर्बादी, ये टीएमसी का पाप है। 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज में दंगों और राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ गई, घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ गई, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई। यानी टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल में जहां भी जा रहा हूं यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता, टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है,
पलटानो दौड़कर आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। सुनकर के हिसाब लिया जाएगा। बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको सेवंथ पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। हाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा। अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। टीएमसी ने महिष्य समाज, तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया, महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां
विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, यह खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बहनों बेटियों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और सुनवाई हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी चलेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। ये कार्ड बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 टाका देने का भरोसा देता है। टीएमसी के महाजंगल राज में मां और बच्चा अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लोग बताते हैं कि यहां मेडिकल कॉलेज में मिलावटी सलाइन चढ़ाने से एक मां की मौत तक हो गई। बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान माताओं को 21,000 रुपये तक की मदद देने वाली है। बंगाल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। आदिवासी बहनों बेटियों की सिकल सेल बीमारी से जुड़ी मुफ्त जांच होगी। और एक बात लिखकर रख लीजिए, पहली कैबिनेट में ही बीजेपी की सरकार की पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करने पर निर्णय होगा। तो बेटियों को भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक। औषधि केंद्रों पर 100 रुपए की दवा 20 रुपए में 80% डिस्काउंट से मिलेगी। टीएमसी के लोग आपके हक का मुफ्त चावल चुराते हैं। बीजेपी आपके हक का पूरा चावल आपको देगी। टीएमसी के लोग आपके पक्के घर के हक में भी डाका डालते हैं। बीजेपी बहनों के खाते में 1.5 लाख रुपए जमा करेगी ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। आपने केंद्र में मोदी को बिठाया है, अब एक मौका यहां बीजेपी के सीएम को देकर देखिए। সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন সময় বাংলা।